All right. Thank you very much for introducing me to this youth group. I'm very glad to be here. In fact, after such a long time, we are talking to each other maybe today. Our hearts are filled with gratitude to God for this opportunity. I believe that this opportunity has come from God, and so that I can share what God has taught me throughout my life thus far, and building our life all together. So that's what I'm going to share today. And shall we look to the Lord in prayer before we begin? Father God, we want to thank you for this opportunity that you have given us as a small family to come together and listen to your word. Pray that, Lord, you speak to us according to our individual needs, that we may be edified and we may be able to apply it in our day-to-day walk, so that your plan and purpose for each one of us be fulfilled and we may become what you want us to be. Thank you for hearing us. In Jesus' most precious name we ask. Amen. Who will be translating for me? Yeah, Uncle, I am here, Rajesh. Ready? Okay. We'll begin now. So today's topic, as you see here, Christian life and work. Basically, our whole life comes like we are living somewhere, doing something, and how exactly we are supposed to live, and how exactly we can make it a blessing to everybody around us. और ये मसीह जीवन के बारे में आज हम देखना चाहेंगे कि किस प्रकार से हम एक मसीह होते हुए अपना जीवन बिताते हैं, और जहाँ पे भी हम रहते हैं हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके जीवन पर किस तरह से हम प्रभाव डाल सकते हैं. To begin with, Matthew's Gospel chapter 5 verse 13. Somebody can read it in Hindi. मत्ती का 5:13 हम पढ़ेंगे. Please read it in Hindi first, then I'll go to the English part of it. तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए. You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It's no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. You are the light of the world. So here we see the two things God mentions about us. और यहाँ पे इस वचन के द्वारा हम देखते हैं दो चीजें परमेश्वर हमारे बारे में बताते हैं. So this, as we know, is Jesus telling his disciples in Sermon on the Mount. और ये जो इस परिच्छेद की पार्श्वभूमि है, ये है प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बात कर रहे हैं, और जो चट्टान के ऊपर जो संदेश उपदेश उन्होंने दिया था उसके दौरान. Along with the disciples, there were a lot of other people who were sitting around and listening to him. और चेलों के अलावा बाकी भी अनेक सारे लोग थे जो उनके साथ थे और प्रभु यीशु मसीह को सुन रहे थे. So he says, you are. That means he's telling to his disciples. और यहाँ पे जो है वो जैसे लिखा है कि तुम, इसका मतलब है वो अपने चेलों को ये संबोध रहे हैं. That means though they did not believe in the Lord Jesus Christ wholeheartedly, still Jesus calls them as disciples. They are already disciples. और इसके बावजूद कि उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूरे दिल से विश्वास नहीं किया था, उसके पहले ही प्रभु यीशु मसीह उन्हें चेलों का दर्जा देते हैं. Now we all are like that. और हम सब भी उन्हीं के जैसे हैं. We all are sitting here listening to this message today is because God has called us to be his disciples. और हम सब आज यहाँ इकट्ठा होकर इस उपदेश को इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें चेलों का दर्जा देकर बुलाया है. Okay, the first thing that we need to remember that you are a disciple of Lord Jesus Christ. तो इसीलिए सबसे पहली बात जो हमें स्मरण रखनी है वो है कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं. Secondly, it talks about salt of the earth
and light of the world. और दूसरी बात यहाँ पे लिखी गई है वो है पृथ्वी का नमक और इस जो धरती है उसके लिए दिए की तरह. So that means these words are given for this life when we live here. Earth and world talks about this world where we live in. जो कि जगत और पृथ्वी की बात हो रही है, तो ये जो these are बात हो meant, रही है इस जीवन के बारे में जो हम जी रहे हैं. So these are meant for us as we live our life here as his disciples. तो इसीलिए जैसे एक चेलों के जैसे हम जीवन इस पृथ्वी पर जी रहे हैं उस दौरान की बात ये है. He also mentions that you cannot lose saltiness. Salt cannot lose its saltiness, which means there is no age limit. So salt, you even at the old age, still you have to have that saltiness in you. There is no retirement for Christian life. और जैसे बात की गई है नमक की, और ये भी लिखा गया है कि नमक होने के नाते वो नमकीनपन हमें खोना नहीं है. तो इसमें कोई आयु की सीमा नहीं है और एक मसीह के लिए रिटायरमेंट की कोई ऐसी आयु नहीं है. So retirement may be from the job or the workplace, but no retirement for Christian life for us. और हो सकता है कि हम नौकरी जहाँ करते हैं वहाँ से हमारा समय खत्म हो सकता है, हम नौकरी करना बंद करेंगे, लेकिन मसीह जीवन के लिए कोई ऐसी आयु सीमा नहीं है. So today you may be a student or you may be working anywhere where God has placed you. आज शायद हम पढ़ाई कर रहे होंगे या फिर कहीं काम कर रहे होंगे जहाँ पे परमेश्वर ने हमें रखा है. So you are disciples of Lord Jesus Christ wherever God has placed you. तो इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं वहाँ पे जहाँ पे भी प्रभु यीशु मसीह ने हमें रखा है. Second one, what we see is salt. दूसरी बात नमक के बारे में. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It's no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. This we have already read. So let us look at the word very clearly. Salt is something which gives value for others when they only by tasting. और जब नमक की बात होती है तो हम जानते हैं कि उस नमक की कीमत तभी है जब वो किसी और चीज में मिलाई जाती है और वो स्वादिष्ट बन जाता है. So you cannot look at salt like how we purchase gold, silver or diamond. When we look at, we appreciate it. Nobody looks at salt and appreciates it like gold or silver. और जैसे सोने चांदी को देख के हम प्रभावित होते हैं, वैसे नमक को देख के हम ज्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं देते. Because in our time, I still remember when we were small in my native place where I was brought up, a village called Karkala in near Mangalore. और भाई बता रहे हैं जब वो बचपन में मंगलोर के पास एक गांव था करकला करके, वहां पे वो पैदा हुए थे. So there I still remember the salt was kept outside the shop in a wooden box. और उन दिनों में उन्हें अभी भी याद है कि नमक जो है वो दुकान के बाहर एक लकड़ी का जो एक डब्बा था उसके अंदर रखा था. And those were not iodized salt like powder and all what we get today. Those were like crystals, the stone salt, which is prepared from the sea water directly. और उस समय उन दिनों में जो नमक बनता था वो आज की तरह नहीं होता था आयोडीन युक्त या फिर पाउडर के स्वरूप में, परंतु ये जो है वो पानी जो समुद्र का पानी है उससे बनाया जाता था और बड़े बड़े ऐसे पत्थर की तरह वो होता था, छोटे छोटे. So these were kept outside in the shop. Why? Without any lock and key, because it had no value. और ये क्यों ऐसा था कि वो दुकान के बाहर रखा जाता था और कोई सुरक्षा के बिना, इसलिए क्योंकि उसका कोई मोल नहीं था. We as Christians have no other value other than the saltiness in us. और वैसे ही हमें एक मसीह होने के नाते हमारी भी कोई कीमत नहीं है
नमकीन होने के अलावा। So salt has two purposes, two properties. One is the property that it adds taste to the food that we eat. और नमक की बात करें तो दो गुणधर्म उसके हैं। एक ये है कि जिस भी खाने में वो मिलाया जाता है वो स्वादिष्ट बन जाता है। Secondly, it is used as a manure for many plants and trees. They use it as manure, as a preservative. और दूसरी बात, कई सारे पेड़ पौधों के लिए उन्हें बनाए रखने के लिए, सुरक्षा रखने के लिए उसे इस्तेमाल किया जाता है। So these values it has, but it has no value. No, rather, I would say commodity value, in the sense, when you sell it, it's the one of the cheapest products. और वैसे देखा जाए तो नमक बेचने जाओगे तो वो काफी सस्ता है, उसकी कोई ज्यादा मोल नहीं है उसका। So we are like that. We have the taste. We are able to preserve the society by Christian values in our life. And we also are able to build one another up as kind of manure that is used for the trees. तो वैसे ही नमक के जैसे ही हम मसीही कैसे हैं कि हम जो है वो, अगर हम नमकीन हैं तो हम दूसरों के साथ जो है वो हमारा उनके साथ मिलकर हम स्वादिष्ट बना सकते हैं, या फिर उनके साथ हम मिलकर जो है वो कुछ अच्छी चीज़ बना सकते हैं। सोसाइटी के द्वारा, सोसाइटी के लिए हम वो जैसे नमक पेड़ पौधों को बचाए रखता है, वैसे सोसाइटी के लिए भी हम वैसा काम करते हैं। और मसीह होने के नाते नमकीनपन जो है वो इस समाज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। Second point is that pinch of salt is used for bowl full of rice or any other dish. और दूसरी बात हम देखते हैं कि अगर कोई भी खाना हम अगर देखते हैं तो जैसे कोई चावल बनाया हुआ है, उसमें थोड़ा सा भी नमक हमारे लिए काफी हो जाता है। We don't put bowl full of salt for a bowl full of rice. और अगर एक कटोरे में चावल लिया है तो हम उतना ही नमक नहीं डालते हैं उसमें। So if you do so, then you can't eat it at all. और अगर हम वैसा करेंगे तो हमें पता है कि हम वो चीज खा नहीं पाएंगे। Often Christians complain, I'm the only Christian home here in this whole building, or I'm the only Christian in my workplace. और कई बार जो है वो हम शिकायत करते हैं कि पूरे बिल्डिंग में मैं अकेला ही मेरा परिवार है जो मसीह है, या फिर जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे कोई मेरे अलावा और कोई नहीं है जो मसीह है। So it's very difficult to practice Christianity when you live among the other communities. और अगर हम अन्य जाति लोगों के साथ जी रहे हैं तो मसीही जीवन बिताना आसान नहीं है। That is what we complain about. और ये हमारी शिकायत होती है। But God keeps us like that. You may be the only Christian in your whole department, but that you are the salt there, a pinch of salt in that place. परंतु परमेश्वर इसी प्रकार से रखते हैं, भले ही हम एक ही परिवार हो या एक ही व्यक्ति हो पूरे मोहल्ले में या फिर ऑफिस में, लेकिन एक नमक की तरह हम वहां पे रहते हैं। Secondly, when the salt is added to the food, it loses its identity. You can't see it anymore, because while eating, you'll get only the taste of it. दूसरी बात नमक के बारे में हम देखते हैं कि जब उसे खाने में मिलाया जाता है तो हम नमक को नहीं देख पाते, लेकिन जो खाना हम खाते हैं उसकी स्वादिष्टता हमें बताती है कि उसमें नमक मिलाया हुआ है। So when I eat something, I don't think what I eat. भाई जब भी कुछ खाते हैं तो ज्यादा सोचते नहीं है कि क्या खा रहे हैं। So Doris always expects me to comment on how good the food is. और डॉरिस आंटी हमेशा ये चाहती है कि उनकी ये उम्मीद होती है कि जब भी खाना भाई खाएंगे तो बताएंगे कि कैसे लगा। Because I don't normally comment, which is not good. और साधारण रूप पे भाई जो है वो उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करते हैं, वो सही नहीं है वैसे। Because while eating, my mind will be somewhere else, thinking about something else. So that's why normally I don't give attention to what I eat.
और वो इसलिए क्योंकि जब भी वो खाना खाते हैं तो उनके विचार जो है वो कहीं और होते हैं, इसीलिए वो खाने के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। So the only thing that I come to know is if the salt is less or not put, that's when I come to know that something is wrong with the food. और तभी उन्हें खाने के ऊपर ध्यान जाता है जब कुछ खा रहे हैं और उसमें नमक कम है या फिर सही नहीं है, तब जाके उन्हें पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है। So that's probably the most of the times my comment would be salt is not there. और इसीलिए खाने के ऊपर जब भी वो टिप्पणी करते हैं तो कई बार वही होता है कि नमक कम है। So don't follow my example. Try to appreciate the cooking that mother does or your spouses do in the future. और ये सही उदाहरण नहीं है वैसे, क्योंकि हमें ज़रूरी है कि जो भी खाना हमारे लिए बनाते हैं, हमारे साथी हो या फिर हमारी माँ बहन हो, उनका हम ज़रूर जो है वो उन्हें उसकी सराहना करें। This salt has a unique value. Nothing else can replace it. नमक के बारे में तीसरी चीज़ हम जानते हैं कि उसकी ऐसी कीमत है कि किसी और चीज़ से हम उसे बदल नहीं सकते। Look at God's provision. Salt for the entire world today is prepared in almost the same way. और देखिए परमेश्वर की क्या महानता है कि नमक जो है वो पूरे संसार में लगभग एक ही तरीके से बनाया जाता है। No other value. और कोई उसका मोल नहीं है। So how we are known in the world today? For our looks or our values? Or are you a salt in the place where God has kept you today? That's what we need to think about our own lives. तो यहाँ पे सोचने के लिए सवाल हम सभी के लिए ये है कि हमें किस प्रकार से जाना जाता है, क्या हमारे बाहरी रूप से बर्ताव के लिए या फिर हमारी जो गुणधर्म है उसके लिए, या फिर हम किस प्रकार से उन लोगों के बीच में रह रहे हैं उसलिए। Light. A city on a hill cannot be hidden, neither do people light a lamp to put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. आगे 14, 15 और 16 में लिखा है, मत्ती 5 का 14 से 16, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। So it says that you cannot be a disciple in hiding. यहाँ पे हमें बताया गया है कि हम चेले होते हुए लोगों से छुपकर नहीं रह सकते। Wherever God has placed you, people should know you are disciple of Lord Jesus Christ. और जहाँ कहीं पे भी परमेश्वर ने हमें रखा है, इर्द गिर्द के लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। Don't not by talking alone, but by your actions. और ये केवल बताने से नहीं मुंह से, परंतु हमारे कर्मों से भी। So have you ever entered the house? When you in the night, when you enter the house, what do? You put the switch on. Do you look at the bulb anytime? जब कभी भी हम रात को या अंधेरे में किसी कमरे में जाते हैं तो सबसे पहले जो है वो हम दिया मतलब बत्ती जलाते हैं, और हम ये नहीं देखते हैं कि किस प्रकार का दिया है। So that poor bulb may be giving light throughout its life, but we never look at it till it goes off. और वो जो दिया है हो सकता है वो बल्ब काफी सालों से हमारे घर में हो, और हम तब तक उस पर ध्यान नहीं देते जब तक वो जो है वो खराब नहीं होता। But the bulb will keep on giving light irrespective of whether we look at it or not. परंतु वो जो बल्ब है वो उजियाला देना बंद नहीं करता है जब तक उसका जीवन खत्म नहीं होता। So that is the kind of bulb you are, source of light. कुछ उस प्रकार का जीवन हमारा भी है जो उजियाला देने का काम करते रहता है। We are not decorative bulbs or the kind of chandeliers or something where people look at it and appreciate.
और हम कोई ऐसा शोभनीय दिए की जैसे नहीं है जो दिखावे के लिए लगाया होता है. So people will never look at us probably, but they only appreciate the light. Oh, in this light I can work well, I can live well, I can see well. और इसीलिए लोग हम पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन जो उजाला हमारी वजह से है, उस उजाले की वजह से वो ये समझते हैं कि इस उजाले के वजह से मैं काम कर सकता हूँ या फिर मैं अच्छे से रह सकता हूँ इसके अंदर. So what does the light do? Light shows people to see everything clearly. और उजाला क्या काम करता है? वो मदद करता है लोगों को हर एक चीज साफ देखने के लिए. So see your good deeds and praise your Father in heaven, it says. और यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें. So normally the world does is that see your good deeds and praise the person. और आमतौर पर हम देखते हैं कि जब भी लोग कोई दूसरे व्यक्ति को देखते हैं जो अच्छा काम कर रहा है, तो उस व्यक्ति की बड़ाई करते हैं. So even the media, if you see today, so they will see all the people who have donated money or worked for the people in the streets, and they will praise them publicly. और जैसे मीडिया के बारे में भी हम देखते हैं कि जो भी कोई दान धर्म करता है, बड़ा डोनेशन देता है, उस व्यक्ति को जो है वो सबके सामने उसकी सराहना की जाती है. That's what people also look for. और यही बात जो वो काम करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं भलाई के, वो भी ये चाहते हैं और उन्हें अच्छा लगता है. But Bible says people look at your deeds and praise your Father in heaven. What does that mean? That means you should not be, your good work should be there, but that should not bring praise to you, but praise should be to the Father in heaven. और परंतु वचन हमें बताता है कि जो भी भले काम हम करते हैं और बाकी लोग ये देखते हैं, तो यहाँ पे बड़ाई होनी चाहिए, लेकिन हमारी नहीं, परंतु जो स्वर्गीय पिता है हमारा, उसकी. Our good work should bring glory to God, not self-glorification. और हमारे भले काम जो है वो उसकी वजह से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, ना हमारी खुद की. That is how we should be working as a light, as a bulb which gives light throughout its life, but nobody looks at it. और इस प्रकार का जीवन हमें जीना है, एक बल्ब की तरह जो दिया उजाला देते रहता है, इसके बावजूद कि उसकी तरफ किसी का ध्यान है या नहीं. The value of that bulb will come to know only when it dies. और उस बल्ब की कीमत तभी पता चलती है जब उसका जीवन खत्म होता है. And some other bulb will have to take over the charge. और कोई दूसरा जो दिया है, उसकी जगह पे बल्ब जो है वो हम जब तक नहीं लगाते तब तक. That is what we are, salt and the light. और इस प्रकार का जीवन हमारा है, नमक और एक दिए की तरह. So let us look at salt and light in day-to-day life. How are we going to do that in our day-to-day life? Because it's easy to talk from the Bible, but is it possible to really apply it in our day-to-day walk? और बाइबल से, पवित्र शास्त्र से नमक और उजाला की बात करना आसान है. अब हम देखेंगे कि रोजमर्रा के जीवन में हमें किस प्रकार से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. Where do we spend 60 to 70% of our waking hours now? Each one of can think about it. Majority of your time, where do you spend? और हम सोचेंगे कि जो भी समय हम जगे हुए होते हैं, उसका ज्यादा से ज्यादा समय हम किस चीज में बिताते हैं. It could be college or it could be the workplace. या तो ये हमारा शिक्षा का स्थान होता है जहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं, या फिर काम का स्थान जहाँ पे काम करने जाते हैं. So that is the place where you spend maximum time, is your area of influence. और वो जगह जहाँ पे हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, वो है वो हिस्सा हमारे जीवन का जहाँ पे हम प्रभाव डाल सकते हैं. Today, one good thing is that Word of God is available in all languages and to all. आज एक अच्छी बात यह है कि परमेश्वर का वचन हमें सभी को हमारे पास है और हर एक भाषा में उपलब्ध है. So,
Word of God is application by common man and woman in daily life. Where Word of God is given to us so that our life throughout here on the earth, we may be able to apply them. और इसीलिए ये वचन हम सबके पास है ताकि हमारे रोजमर्रा के जीवन में लगातार पूरे जीवन भर जो है वो हम इसे इस्तेमाल करें हमारे. Many people, if you see, there is a divide, sacred and secular. और कई लोग जो है वो हम देखते हैं, उनको देखकर हमें दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं. एक तो पवित्र लोग और जो है वो सामाजिक लोग. Now, the life that we live, we separate it into two, sacred and secular. That means one is sacred when we go to church, and one, the workplace where we live as secular people. So we differentiate between the two. और इसीलिए जो भी जीवन हम जीते हैं तो दो हिस्सों में हम उसे बांटते हैं. या एक तो जब हम कलीसिया को जाते हैं या फिर मसीह लोगों के साथ होते हैं तो हम पवित्र मानते हैं अपने आप को, और जब यहाँ पे काम हम करते हैं वहाँ पे जाते हैं तो दूसरे लोगों को जैसे हम मानते हैं. But God does not want us to divide it like that. परंतु परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम अपने जीवन को इस प्रकार से दो हिस्सों में बांट दें. Matthew 6:10, it says, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. और मत्ती का 6:10 में जैसे हम पढ़ते हैं, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो. So that means God's kingdom, where we are part of God's kingdom. So where we live, we belong to God's kingdom, and the word of God that is given to us should be applied in the place where we live day-to-day lives. और इसका मतलब ये है कि जहाँ पे भी हम रहते हैं वो भी परमेश्वर के राज्य का हिस्सा है और उसकी इच्छा हमें वहाँ पे भी पूरी करनी है. Hebrews 11:6, and without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. इब्रानियों का 11:6 में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है. Now, if you see Hebrews 11, if you have time, go and read it. It talks about all the people in the Word of God in the Old Testament, how they exercised faith. It talks about how they exercised faith. There may be a lot of failures in their life. It does not mention anything about that. So when God looks at the lives of the people from the Old Testament, from the New Testament angle, he only talks about their faith. और यहाँ पे आप अगर समय रहेगा घर पे आप पढ़ सकते हैं इब्रानियों का 11 का जो अध्याय है. यहाँ पे जब बात हो रही है तो जो पुराने नियम के जो व्यक्तित्व है उनके बारे में जब नए नियम के माध्यम से जब बात की गई है तो केवल एक बात है जो जिसके बारे में बात होती है, और वो है उनका विश्वास. किस प्रकार से उन्होंने विश्वास जताया. And if you look at it clearly, it talks about how they obeyed God, word of God in their life, and exercising that faith. That's as simple as that. और यहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से उन लोगों ने परमेश्वर के वचन को जो है वो आज्ञा पालन किया और अपने जीवन में हर हिस्से में विश्वास प्रकट किया. When Abraham was called by God to leave his living place and go to a land which he promises him, और जैसे अब्राहम के बारे में परमेश्वर ने उसे बताया कि जिस जगह पे वो रह रहा था वो छोड़कर दूसरी जगह पे जाने को, दूसरे देश में जाने को भूला जहाँ पे परमेश्वर ने जो उसे अभिवचन के तौर पे बताई. So Abraham follows it, obeys it without knowing where he's going and what is in store for him. इसके बावजूद कि पता नहीं था कहाँ पे वो जा रहा है और वहाँ पे क्या रखा है उसके लिए, इसके बावजूद इब्राहिम जो है वो परमेश्वर की बात मानता है. That is called as simple faith, just trusting God and going to place where God told him to go to. और ये कहलाता है सरल विश्वास, जहाँ पे बिना किसी चीज को ज्यादा समझते हुए हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके
विश्वास करते हैं और जैसे उसने बताया वैसे करते हैं। So today we have the full word of God with us, completed. आज हमारे पास परमेश्वर का वचन संपूर्ण रूप से मौजूद है। So what are we supposed to do? What does it mean for us to exercise faith, live by faith? तो इसका क्या मतलब है जब हमें बताया जाता है कि विश्वास का जीवन बिताएं? Application of word of God in daily life is living by faith. रोजमर्रा के जीवन में परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करना, इसका ये मतलब होता है जब हम बोलते हैं कि हम विश्वास से जीते। So this is what we need to do wherever God has placed us, whether it's in the workplace or whether you're studying in a college, anywhere else. So that is the place where we apply God's word in our day-to-day walk. और इस प्रकार से जहाँ पे भी परमेश्वर ने हमें रखा है, जो भी कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे, या फिर जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे रह रहे हैं, हर जगह पे जहाँ पे भी रखा है, उस जगह पे हम विश्वास के साथ परमेश्वर को जी सकते हैं। So these are the different phases of Christian life. और ये जो है वो एक मसीही जीवन के अलग-अलग हिस्से जो है वो दिखाए गए हैं। Depends upon where you have come to know the Lord. और ये निर्भर है उस आपके जीवन के कौन से पड़ाव पर आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा। It could be childhood. हो सकता है जब आप बच्चे थे, छोटे थे। It could be a student, career or vocation, marriage and raising a family, in-laws, grandparents and senior citizens. This is how you move in your life. और या फिर आगे चलकर आप तो पढ़ाई कर रहे थे, या फिर नौकरी कर रहे थे, व्यवसाय कर रहे थे, या फिर शादी और परिवार बढ़ा रहे थे, या फिर आपके जो इन-लॉज है उनके द्वारा, या फिर आपके दादा नाना परदादों के द्वारा, या फिर जब आप बूढ़े हो गए तब। So the earlier you come to know the Lord in your life, the better it is. और यकीनन जितने जल्दी आपके जीवन में आप परमेश्वर को जाने वो आपके लिए अच्छा है। You get more time to apply God's laws, God's principles in your day-to-day life. और वो इसीलिए क्योंकि उतना ज्यादा समय आपके पास होता है परमेश्वर के वचन को आपके रोजमर्रा के जीवन में लागू करने के लिए। Today, since we are talking about youngsters, so youth meeting this is, so it could be more of student and career and vocation. और आज जो कि हम युवाओं के बीच में बात कर रहे हैं, तो पढ़ाई का हिस्सा या फिर काम करने का और व्यवसाय के दौरान उस पहलू जो जीवन का पहलू है उसके द्वारा जो उसके दौरान की बात हम करेंगे। So me and Doris, we have reached the stage called in-laws. और भाई और डॉरिस सिस्टर जो है वो इस पड़ाव पे है कि उनके बेटे हैं और उनकी भी शादी हो चुकी है, बेटियों की शादी हो चुकी है। So we are yet to become grandparents, and of course senior citizens also. I have become already a senior citizen in terms of the worldly age limit, but still we have a long way to go as long as God permits us. But what I want to focus on today is student and career and vocation. और वो जो है वो उनके बच्चे अभी तक नहीं हुए हैं, तो वो फेज आना बाकी है। परंतु आज हम जो है वो ध्यान देंगे जब हम पढ़ाई करते हैं या फिर काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उस हिस्से में। Career and vocation, let me focus on that first. My first story, which I would like to mention here as a failure, because when I started working, first time I started working in a company called Crompton Greaves. और जब नौकरी या व्यवसाय की बात हो रही है तो भाई अपनी कहानी यहाँ पे बता रहे हैं, और वो उसे एक असफलता का हिस्सा मानेंगे क्योंकि वो हम देखेंगे। और वो जो है वो क्रॉम्पटन एंड ग्रीव्स करके जो कंपनी है वहाँ पे उन्होंने शुरुआत की। I was in sales department. और वो जो नौकरी कर रहे थे वो कुछ बेचने का हिस्सा जो होता है कंपनी में, वहाँ पे वो काम करते थे। And we go out to meet customers and come back. और यहाँ पे उनको जो है वो दूसरे लोग जो उनका खरीद सकते हैं वो प्रोडक्ट, उनसे मिलकर वापस आना होता है। And then we make whatever we spend, we have to make voucher. और फिर जो भी
इस प्रक्रिया के दौरान वो खर्चा करते हैं, उसका उन्हें पर्ची बनानी पड़ती है। And since I did not know how to make them, I asked one of my colleagues how to do that. और जो कि उन्हें पता नहीं था, वो नए-नए थे, तो उन्होंने उनके साथी जो है उनसे पूछा कि कैसे करना है। So they told me how you can make extra money by claiming false vouchers. और फिर उनके साथियों ने उन्हें गलत शिक्षा बताई कि किस प्रकार से तुम झूठा बिल बनाकर ज़्यादा पैसा अपने लिए कमा सकते हो। I did not want to do that, but they said that if you don't do that, others also will be in trouble. और जबकि भाई वो करना नहीं चाहते थे, लेकिन जो कि दूसरों ने बताया कि अगर तुम नहीं करोगे तो हमें भी तकलीफ हो जाएगी। So I made a voucher as they said and claimed the money. इसीलिए जैसे उन्हें बताया गया उस प्रकार से ही उन्होंने ज़्यादा कीमत का जो बिल बनाया और उस प्रकार से वो पैसा लिया। And on the same day, because I was traveling on bike those days, और उन दिनों में जो है वो बाइक के ऊपर जो है वो ज़्यादातर यहाँ वहाँ जाते थे। So when I was returning home, I banged into something and my headlight broke off the bike. और जब एक दिन वो घर वापस लौट रहे थे तो वो किसी चीज से Same day, टकरा same day. गए। उसी दिन जो है जिस दिन ये बिल की बात हुई थी, उसी दिन घर जाते समय उन्होंने बाइक जो है वो किसी और चीज से टकरा गई और उसका जो हेडलैम्प होता है वो टूट गया। Then I had to go and repair it immediately because it was night. So I had to correct it, and I spent much more than what I gained from false vouchers. और जो कि रात का समय था तो उन्हें तुरंत वो जो हेडलैम्प जो है वो ठीक करना पड़ा, क्योंकि आगे नहीं जा सकते थे। और जितना उन्होंने गलत बिल बनाकर कमाया था उससे कई ज्यादा खर्चा उन्हें वो बाइक रिपेयर करने में गया। This is what happens with every false thing that we do in our life. We end up paying more than we gain. और यही बात जो है वो हम सभी के जीवन में हम महसूस करते हैं। जब भी हम गलत तरीके से पैसा कमाते हैं तो हम किसी और चीज में जितना हमने गलत तरीके से कमाया था उससे कई ज्यादा जो है वो हमें खर्चा होता है। So I learned the hard way. तो इस प्रकार से उन्होंने सीख सीखी, परंतु ये जो है उसकी कीमत चुकाकर उन्होंने ये सीख सीखी। So why I failed? If you look at the word of God, Colossians 2:6-8. Can somebody read it in Hindi? कुलुस्सियों की किताब इसका 2 अध्याय 6 से 8। सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्वज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर न कर ले, जो मनुष्य के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. See to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on human tradition and the elemental spiritual forces of this world rather than on Christ. So no proper understanding of Word of God and application of it in day-to-day life was the reason for my failure. तो इस प्रकार से असफल रहने का क्या कारण था? कारण ये था कि परमेश्वर के वचन का सही समझ ना होना और उस ना समझ होने के नाते उसका रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल भी ना करना। But it was a good beginning for me. परंतु उनके लिए ये एक शुरुआत थी जो अच्छी रही। So we get opportunities in abundance as we live in our workplace, where you जहाँ पे भी हम अपना नौकरी व्यवसाय करते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं, कई सारी मौके हमें मिलते हैं। School, college, place of work, where you spend major amount of time, these are the opportunities that you get.
और You are the जहाँ पे only हम one पढ़ाई often who can be light and salt there. जहाँ पे भी हम पढ़ाई करते हैं या फिर काम करते हैं, कई सारा समय हमारे पास होता है और हम केवल अकेले होते हैं जो एक नमक या फिर एक दिए की तरह वहाँ पे काम कर सकते हैं। People always have needs for prayer. So when they know that your prayers are being answered, they will come to you. और लोगों को हमेशा ज़रूरत होती है प्रार्थनाओं की, और जब उन्हें पता चलता है कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, तो वो हमारे पास आने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। Maybe when they're in group, they may mock at you, but individually, all people have needs. So you need to have one-to-one fellowship or relationship with people rather than having a group, where you'll get mocked. और हो सकता है कि जब झुंड में लोग हों तब हमें जो है वो हमारे साथ को ठट्टा करेंगे, लेकिन अकेले में जो है वो उनकी ज़रूरतें हमें या ज़रूर बताते हैं। तो इसीलिए हमें लोगों के साथ एक वैयक्तिक रिश्ता जो है वो बनाना है। First time no gives opportunity to say why. और सबसे पहले जो है वो जब वो ना बोलते हैं तो हमें मौका मिलता है पूछने का कि कारण क्या है। Here I remember one of the examples, like the managing director of my company, like on that day, they were to have puja for the treasure box or something like that. That is one of the festivals in India where they do Lakshmi Puja. और भाई को एक किस्सा याद आ रहा है, जब वहाँ पे काम करते थे तो सबसे ऊपर जो अधिकारी थे मैनेजिंग डायरेक्टर, उनका किस्सा ये है। और उस दौरान कोई त्योहार था जहाँ पे पूजा की जाती है चीज़ों की, या फिर जो मौलवान चीज़ें होती है वहाँ पे। So the time was fixed for everybody to go to a particular room for that purpose. और उस उद्देश्य से समय दिया गया था हर एक व्यक्ति को कि वो समय के अनुसार उस एक कमरा था उसके अंदर उसे जाना है। So my managing director's cabin was where I was sitting behind me there. और जहाँ पे भाई बैठते थे उसके पीछे ही उनके मैनेजिंग डायरेक्टर जो बड़े अधिकारी है उनका कमरा था। She came out of her room. Roland, let's go. It's late now for the puja. और वो बाहर आई और उन्होंने भाई को बोला कि चलो चलो चलते हैं क्योंकि समय हो गया है। So I told her, Madam, I don't participate in this. I'm sorry, I won't be able to join. तो भाई ने उन्हें बताया कि मैडम मुझे माफ कीजिए, मैं ये इसमें शामिल नहीं हो सकता। She was shocked. और वो अचंभित हो गई। And she looked at me and asked me, are you a believer? और वो भाई की तरफ उन्होंने देखा और पूछा कि क्या तुम विश्वासी हो? I was shocked. But how does she know about believers? इस सवाल से भाई अचंभित हो गए कि इनको विश्वासी के बारे में कैसे पता? People know because somebody has taken a stand somewhere, and she knew about Christianity because one of her relatives had become a believer. Those they were Punjabis, but that lady has become a believer, and she knew what believers stand for. वो इसीलिए Believer in कि Christ. कहीं ना कहीं विश्वासी जो है, मसीही जो है, वो कहीं ना कहीं जो है वो अपने मुद्दे पे खड़े रहते हैं। और ये बात उस व्यक्ति को भी पता थी क्योंकि उसके रिश्ते में कोई था जो पंजाबी होने के बावजूद जो है वो मसीह पर विश्वास करने की वजह से जो है वो इसी प्रकार का बर्ताव उनका भी था। This actually gave opportunity for her to know me more and trust me more because I am a believer in Christ. और इस घटना के द्वारा उस व्यक्ति को भाई के साथ और ज्यादा भाई के बारे में जानने का मौका मिला और विश्वास करने का भी मौका मिला जब उसे पता चला कि ये एक मसीही व्यक्ति है। Never again anybody asked me to join any of such pujas in the company, in the office. और उस हादसे के बाद, उस घटना के बाद कभी भी किसी ने भाई को पूजा या उस प्रकार की चीजों के लिए पूछा नहीं। So first time no helps us a lot. तो इसीलिए सबसे पहली बार जब ऐसा होता है और उसी समय अगर हम ना करते हैं, मना करते हैं, तो आगे चल के हमें इसका फायदा होता है।
Bend like the grass when the powerful wind blows. This is one of the principles I have been following in this company as I was working. I tell all my colleagues know me for this today. और यहाँ पे बात की जा रही है कि उस घास की तरह बनो, जब हवा तेज होती है तो हवा की जिस और हवा चल रही है उसके अनुसार जो है वो झुको। और इस प्रकार का जो दृष्टिकोण भाई का है और जहाँ पे वो काम करते हैं साथी और उनके साथी है, इस प्रकार से उन्हें जानते हैं। That enabled me to sustain for so long. I worked 25 years in this company. और इसी बात से जो उन्हें मौका मिला कि इतने सालों तक जो है वो 25 साल तक एक ही कंपनी में वो बने रहे। Because there are a lot of powerful winds that will come when you work. और वो इसीलिए क्योंकि जहाँ पे भी आप काम करते हैं कई सारी ऐसी आंधियां आएगी जो बहुत सामर्थ्यशाली होंगी। So you may try to oppose it or stand straight on top of that, but you will break if you try to face it. So you bend like the grass, and when the wind passes, it's a temporary phenomena, then you can stand again. और अगर उस आंधी और तूफान के दौरान हम डटे रहेंगे और खड़े रहेंगे तो हम टूट जाएंगे। तो इसीलिए वो जो थोड़े समय के लिए वो तूफान होता है, हम एक घास की तरह हम झुकेंगे और वापस उस तूफान के बाद हम सीधे खड़े रह सकते हैं। So this principle I have taught all my subordinates, and they all appreciate for that because they also have become kind of long term in the company. I have retained people for long term. और यही बात भाई ने जो है वो उनके नीचे जो काम करते हैं उन सभी को भी ये सिखाई है, और जो वो लोग भी जो है वो इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं और जिसकी वजह से काफी समय तक वो कंपनी में टिक सके। Going the extra mile, this is something which I practice in my work area. What Bible tells us to do. और एक बात जो पवित्र शास्त्र भी हम बताती है कि कुछ एक्स्ट्रा करना, जो भाई अपने जीवन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। It is difficult sometimes. It's my job, your job, her job, but we don't look at it like that in the workplace. You are a God's child. God has kept you over there. You are working for God in that place. और कई बार ये मुश्किल होता है क्योंकि हमारा काम उसका काम या फिर कोई चीज़ें ऐसी होती है जो हम नहीं करते हैं, हमारा काम नहीं होता है, परंतु हम एक बात याद रखते हैं कि हम परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं जहाँ पे भी हम काम करते हैं। तो इसीलिए मायने फर्क नहीं पड़ता अगर हम कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर ले जो हमारा नहीं है। Being a blessing to the place of work. जहाँ पे भी हम काम करते हैं उस काम करने की जगह के लिए एक आशीष बनना। When you are a child of God, automatically God blesses that company or wherever you are working for because of you. और जब भी हम परमेश्वर के संतान की तरह उस जगह पे काम करते हैं तो यकीनन अपने आप ही परमेश्वर उस जगह को, उस व्यवसाय को या उस नौकरी को जो है वो आशीषित करते हैं क्योंकि हम वहाँ पे काम करते हैं। So this is something which has been my experience, but we don't have time to share everything today. But I think the time is already over, if I'm correct. Is it so, or there is a possibility to continue? Yes, uncle, you can continue. It's okay. All are patient enough? Yeah. All right, let's go further. Tell me when to stop. So if there is anybody who wants to leave, let me know so we can stop and maybe continue next time if you want. Okay? Sure, uncle. All right. Now coming to opportunities in abundance. Now, what do we do when we work in a particular place? If you go by Sermon on the Mount, sorry, continue. आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है वो मौके हमें मिलते रहते हैं जहाँ पे भी जैसे हम काम करते हैं। Do not use bad words in the organization or to your colleagues, because normally we are used to saying certain things without thinking. दूसरों के प्रति या फिर हमारे साथियों के प्रति गलत शब्द का इस्तेमाल ना करो, क्योंकि ये आमतौर पे हम पाया जाता है कि हम गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं। Again, anyone who says to brother or sister Raka is answerable to the court, and anyone who says you fool will be in the danger of fire of hell.
This is मत्ती Matthew 5 का chapter 5 verse 21. मत्ती 5 का 21 में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि पूर्वकाल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा. This is spoken in the context of murder. और यहाँ पे जो है वो संदर्भ है किसी हत्या के बारे में. So when Jesus talks about murder, he compares this, whatever you're saying, you fool, that like calling bad names or something is equivalent to that. So you cannot afford to call any of your colleagues or your fellow workers, look down on them or use words which would hurt them. और यहाँ पे वचन जो है वो बताता है कि मूर्ख, अरे मूर्ख करके बोला गया है. तो जब भी हम गलत शब्द बोलते हैं तो इसी प्रकार से है, और वचन हमें मूर्ख की तरह गिनता है. Matthew 5:28. But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. मत्ती 5 का 28. परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका. So second point, important point in the workplace is guard against sexual sins. और मुद्दा जो है वो जो महत्वपूर्ण है वो है कि व्यभिचार से जुड़े हुए पाप से दूर रहो. This is one of the most important things in the organization today. और ये सबसे अहम बात है जहाँ पे भी हम काम करते हैं. In fact, these days people in the organization make us sign documents that we will not do such things in the organization. We are trained to go, we are made to go through a big document of various things that we can do, which we should avoid, and sign it off. और आजकल जहाँ पे भी हम काम करते हैं कई सारे जो है वो कागजात और उस पे हमारा दस्तखत किया जाता है कि हम ये सारी चीजें नहीं करेंगे, और ये इसे बहुत मायने रखा जाता है आजकल. But for us, I tell you that anyone who looks at a woman lustfully, that means it has got to do with mind, not action. परंतु मसीह होने के नाते हमारे लिए काम करना तो दूर की बात, लेकिन हमारे मन में भी गलत विचार नहीं आना चाहिए. So Satan can easily attack us in this area, because if you do not decide to keep your purity in your mind and heart, we can easily be succumbed to this pressure. और शैतान, अगर हम उतने सचेत नहीं हैं और हम अपने मन की रक्षा नहीं कर रहे हैं, तो शैतान के लिए ये बहुत आसान होता है कि हम इस पाप में फंस जाएं. Next one, Matthew 5:37. All you need to say is simply yes or no. Anything beyond this comes from the evil one. मत्ती 5 का 37. परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है. Let your yes be yes and no be no. अगर आप हाँ बोलते हैं तो हाँ ही हो, और अगर नहीं है तो ना बोलो. What does this mean? क्या This मतलब is है called इसका? integrity. और इसे जो है वो एक निष्ठता कहते हैं. Because everybody who interacts with you should know that if I say that I will complete this work by so and so date, by hook or crook, you should complete that one on that date and submit it. Because your words have value. As a Christian, you cannot say something and not do it. So normally you cannot take your words lightly yourself, and make sure that your word is yes. That means it will happen yes. If you say no, it will be a no. So think carefully before you commit anything. और इसका मतलब ये कि जो भी हम बोलते हैं हम उसके अनुसार करें. और अगर हम कोई चीज बोल रहे हैं कि हम इतने समय में ये चीज करेंगे, तो हम अपने आप के शब्द को इतना सत्यनिष्ठता दिखाएं, ईमानदारी दिखाएं कि उस चीज को हम पूरा करेंगे उस समय में. And for this, you will be recognized in your company. He says something and he does it. और इस ईमानदारी के लिए हमें उस कंपनी में जाना जाएगा कि ये व्यक्ति अगर कुछ बोलता है तो उसके अनुसार करता भी है. And why you do it, if people ask, then you know why. Because glory to go to God, not to us.
और अगर लोग पूछेंगे कि ऐसा आप क्यों करते हो, तो हमें मौका मिलता है कि हमें परमेश्वर के बारे में बताएं और उसकी महिमा करें, ना अपनी खुद की। Then verse 19, 30, sorry, 39. But I tell you, do not resist an evil person. If anyone slaps you on the right cheek, turn to them the other cheek also. और आगे 39 वचन में लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। Now, this is one area where I think even in the place where you work, you will be often facing opposition in different ways. जहाँ पे भी हम काम करते हैं, हम कई बार अलग अलग तरह से जो है वो हमारा विरोध किया जाता है। So you do not be vengeful. तो हमें अपने मन में बदले की भावना से नहीं जीना है, Because God says, vengeance is mine. क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि बदला लेने का काम मेरा है। It may not be physically hitting you, but it could be words that could be spoken against you in the place of work. और जहाँ पे काम करते हैं, हो सकता है कि किसी ने शारीरिक रूप से आपको विरोध नहीं किया हो, मारा नहीं हो, लेकिन कुछ शब्द ऐसे बोले होंगे जो आपको आपके विरोध में हो। Somebody can mock at you because you are a follower of Lord Jesus Christ. जो कि हम मसीह के अनुयायी हैं, तो हमारी किसी ने ठट्टा की गई होगी। So early in my workplace, when I was working in Crompton Greaves, there was a guy who used to come and every day morning, he would mock at me and go. और जहाँ पे भाई पहले काम करते थे क्रॉम्पटन ग्रेव्स में, एक व्यक्ति था जो हर सुबह उनके यहाँ पे आके उनकी ठट्टा उड़ाकर जाता था। In front of all others, we had about 25 people sitting in the department. और लगभग 25 लोग वहाँ पे बैठते थे उन सभी के सामने। So he would come and stand next to my table and say, "Oh, this is the holy place where Jesus Christ is sitting." और वो व्यक्ति भाई के यहाँ पे जहाँ पे बैठते थे वहाँ पे आता था और सबके सामने बड़े जोर से कहता था कि और ये पवित्र वो जगह है जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बैठते हैं। I used to simply smile at him and keep quiet. और भाई केवल उनकी तरफ स्मितहास से करते थे और शांत बैठते थे। One day he comes. एक दिन वो आता है व्यक्ति। He told me, those days they used to call me Jayakar in the company. और उन दिनों में भाई को जयकर बुलाते थे वहाँ पे कंपनी में। वो So Jayakar, he came and told me, Jayakar, I will never mock at you again. और उस व्यक्ति ने आके कहा कि जयकर, मैं आगे से तुम्हारी ठट्टा कभी नहीं करूंगा। Because God has shown me something that I should never be doing this anymore. और वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कुछ दिखाया है और उसकी वजह से मैं ये चीज वापस नहीं दोहराऊंगा। I have been punished, he said. और मुझे इसका दंड मिल चुका है, ऐसे उसने बोला। I asked him, Pramod, what has happened? Can you share? भाई ने उनसे पूछा कि प्रमोद, उस व्यक्ति का नाम था, कि क्या हुआ? He refused to share anything with me, but I knew that God had touched him. और उस व्यक्ति ने बाता नहीं क्या हुआ, लेकिन भाई को पता चल गया कि परमेश्वर ने उसे छुआ। So God has taught so many things in the workplace like this. कई सारी ऐसी चीजों के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें सिखाया है। We can simply apply the word of God, take it from face value and apply it in the workplace and see God's work in that area to raise a testimony. और इसीलिए परमेश्वर का वचन जैसा है वैसा जो है वो हम उसे स्वीकार करेंगे और अपने जीवन में हम अगर जहाँ पे हम काम करते हैं उसे इस्तेमाल करेंगे तो हम परमेश्वर की अनुग्रह की गवाही बनेंगे। Love enemies and pray for them. आगे हमें बताया गया है कि जो हमारे शत्रु है उनसे प्रेम रखो और उनके लिए प्रार्थना करो। But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। Who are your enemies in the workplace? जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे हमारे शत्रु कौन है? Who you feel like hating? वो लोग जिसके बारे में हमारे अंदर द्वेष की भावना है। Most of the times it is your boss.
और हमेशा लगातार हम पाते हैं कि ये हमारे अधिकारी हैं जिनके अंदर हम काम करते हैं. Because I had this experience where I had a boss who was very tough. और भाई के साथ ये अनुभव वो शेयर कर रहे हैं कि वो एक ऐसे अधिकारी के अंदर काम करते थे, वो बहुत कठोर थे. So achieving targets was in sales is one of the toughest job. और जहाँ पे वो काम करते थे और जो कि वो बेचने की चीज़ों के हिस्से में थे, तो उनका टारगेट होता था कि इतना बेचना है और वो टारगेट अचीव करना, उतना करना बहुत मुश्किल था. So I was not good in sales at all. और उतने अच्छे से वो बेच नहीं पाते थे. So my targets were not achieved on time. और इसीलिए जो उनका टारगेट था वो समय के अनुसार नहीं हासिल किया गया. So he used to daily come and shout at me because I did not know what to do. और इसीलिए वो जो अधिकारी है वो हर दिन आके भाई के ऊपर चिल्लाकर जाते थे और भाई को पता नहीं चल रहा था कि करना क्या है. Then I read this verse, pray for them those who persecute you and despitefully use you. और फिर उन्होंने इस वचन को पढ़ा कि बैरियर से प्रेम रखो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो. I started praying for him every day. और फिर भाई ने हर दिन लगातार उस व्यक्ति अधिकारी के लिए प्रार्थना करना शुरू किया. In fact, I started praying, Lord, bind Satan in his life that he may not shout against me. और इस प्रकार से प्रार्थना करना शुरू किया कि परमेश्वर इस व्यक्ति के अंदर की जो शैतान है उसे बांध दे ताकि वो रोज आकर मुझ पर चिल्लाना करे. Believe it or not, the day I pray for him like that, so he used to be quiet like a mouse. Otherwise, he was a tiger. On those days, he used to become like a mouse. और जब भी भाई ऐसे प्रार्थना करते थे, आप विश्वास करें पता नहीं, लेकिन वो व्यक्ति जो एक बाघ की तरह आकर उनके ऊपर दहाड़ता था, वो एक चूहे की तरह शांत रहने लगा. Because his boss would have given him on that day. और वो इसीलिए क्योंकि जो उनके भी अधिकारी हैं उनसे उन्हें मिला होगा उस दिन. So this was my experience. Then I realized how to handle these guys. और ये अनुभव होने के बाद उन्हें भाई को पता चला कि इस प्रकार के लोगों के साथ कैसे बर्ताव करना. So in that same year, he had told me, but 6 months was over, my budget I had achieved was only 25%. और 6 महीने हो चुके थे और 50% की जगह केवल 25% जो बजट है वो उनका हो चुका था. So he told me that in the month of March, I will be sitting here to judge your performance. So do not expect anything in the month of March. और उन्होंने बोला कि समय 1 साल के बाद जो मार्च में होता है, जब आपको आपका जिस प्रकार से आपने काम किया है उसे देखा जाता है, तो उस व्यक्ति ने बोला कि मैं ही वो हूँ जो ये सब तय करेगा कि आपने कैसे काम किया है और मुझसे कोई उम्मीद मत रखना. Your God will not come and save you in the month of March. और मार्च में साल के अंत में तुम्हारा परमेश्वर आके तुम्हें बचाने वाला नहीं है. I only told him, let us see. और भाई ने केवल उनसे एक बात कही, बोला कि देखते हैं. So I started praying for my budget achievement. और भाई ने फिर प्रार्थना करना शुरू करी कि मेरा बजट किसी तरह से पूरा हो. Believe it or not, I don't know from where the orders started coming, for which I had not even worked for. और फिर कुछ इस प्रकार से अविश्वसनीय बात हुई कि जिस काम की उन्होंने जिसके लिए काम भी नहीं किया था, वहां से उन्हें ऑर्डर्स जो है वो मिलना शुरू हुआ. I still remember the budget was somewhere about 80 lakhs I had to achieve. That was about probably 20 years back, but 80 lakhs I had to achieve through the year. The budget achieved in the month of March was 80.7 or something like that. I still remember that. और उन्हें अब तक याद है 20 साल पहले की बात कि उन दिनों में 80 लाख जो है वो उनका बजट था, उतना उन्हें माल बेचना था 1 साल में, और साल के अंत में 80 लाख और उसके ऊपर कुछ 70,000 इस प्रकार का उनका जो है वो अचीवमेंट रहा. So it is not 20 years, it's much more than that. It was my previous company. I think it's almost 35 years before. और 30-35 साल पुरानी बात यह है. But that is the turning point of my life. और वो जो समय था
वो उनके जीवन के लिए जो है वो सबसे महत्वपूर्ण रहा, जहाँ पे वो परमेश्वर की ओर मुड़े। I learned how to handle my budgets. उन्होंने सीखा कि अपना जो बजट है, टारगेट जो है वो उसे कैसे तय करना है, कैसे Just उसको pray and अचीव hand it करना है। over to God. प्रार्थना करना है और परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। I learned also how to handle our bosses. ये भी उन्होंने सीखा कि अपने अधिकारियों के साथ कैसे उन्हें हैंडल करना है। Pray for them. उनके लिए प्रार्थना करें। Now these are the simple formula that I used ever since, and God has never let me down till today. और ये केवल बहुत ही सरल जो है वो तकनीक उन्होंने अपनाई है, और परमेश्वर ने उन्हें आज तक कभी भी असफल नहीं ठहराया इसमें। So in sales job, if the budget fear is not there, then there is no other fear. और जब आप बेचने का कुछ काम करते हैं और अगर बजट को छोड़ के और कोई डर आपके मन में नहीं होता, So when God takes care of it, you don't have to worry. और जब वो चीज भी परमेश्वर अपने हाथ में लेते हैं तो आपके लिए चिंता का विषय ही नहीं कोई। Now career growth. आगे हम देखेंगे जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे हमारी तरक्की के बारे में। Your reward is from above. This is my firm belief and what I practice throughout. और एक ऐसी चीज जिसके ऊपर भाई विश्वास रखते हैं और हम विश्वास उनका है कि हमारी बढ़ोतरी जो है वो हम ऊपर से आती है, परमेश्वर से आती है। If you read in Matthew 6, there are several verses I have put together here. It says, then your Father who sees what is done in secret will reward you. Father who sees what is done in secret will reward you. Which verse? The verse in, I'm not reading the full verse, but I'm putting Matthew 6, verse 3. मत्ती 6:3 में हम देखते हैं कि तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है गुप्त, या 4 verse 4. मत्ती 6:4 में लिखा है, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। So that means it shows us that what we do in secret, God he knows it and he looks at it. और यहाँ पे हम जानते हैं, देखते हैं, पढ़कर समझते हैं कि जो भी हम करते हैं गुप्त में, भले ही वो दूसरों के लिए गुप्त हो, लेकिन परमेश्वर उसे देखता है और उसका प्रतिफल देता है। So your good works, your efficient work in the office or wherever you are, or your prayer, which also you do it in the closed doors, all these things, Father who sees what is done in secret will reward you. So our reward comes from above, not from the people above you, but from God himself. तो इस प्रकार से जो भी हम अच्छा काम करते हैं नौकरी की जगह पे या फिर गुप्त में कुछ चीजें करते हैं, प्रार्थना करते हैं दरवाजा बंद करके, तो वो सारी चीजें हमारा पिता जो गुप्त में देखता है वो, और हमारा प्रतिफल जो है वो हमारे अधिकारी नहीं जो ऑफिस में है, लेकिन वो स्वर्गीय पिता देता है। So I never looked at promotions any time in my life. तो इसीलिए भाई ने अपने जीवन में कभी भी बढ़ोतरी को अपना उद्देश्य नहीं बनाया। It comes, and if God decides that he has to promote me, he will give me the promotion. So any time the letters come, so I just thank God and receive it and say thanks and return it with the signature, acceptance. और इसीलिए जब भी परमेश्वर की अगर इच्छा है तो वो प्रतिफल जरूर मिलेगा, वो बढ़ोतरी जरूर मिलेगी। तो जब भी परफॉर्मेंस के बाद वो लेटर उन्हें मिला, उन्होंने हमेशा उसे बिना खोले धन्यवाद के साथ उसे स्वीकारा और हस्ताक्षर कर वापस कर दिया। So there are periods in my life when you work for 7 to 8 years without any change in your position. और उनके जीवन में कई ऐसे पहलू आए जहाँ पे 7 या 8 साल तक बिना किसी बढ़ोतरी के उन्हें काम करना पड़ा। But there are times when you got 2 promotions within the span of 4 years. और परंतु उसके साथ ही साथ ऐसा भी पड़ा हुआ है कि 4 साल में लगभग 2 बार उनका बढ़ोतरी हुआ। And when I look back, I find that those were all need based. When God found that I have more need,
God, and I was capable of handling higher responsibilities. God took me there. और अभी अगर वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें यह महसूस होता है कि परमेश्वर उनकी जरूरतों के हिसाब से वो बढ़ोतरी दी। जब भी उन्हें जरूरत थी तो उन्हें बढ़ोतरी मिली, या फिर जब भी वो इस काबिल बने कि और ज्यादा जिम्मेदारी ले सके तब उन्हें बढ़ोतरी मिली। So one of the habits of the people in the company is that they get the appraisal letters, when the increment letters, they're very happy. But when they compare with others, they feel sad. और लगातार हम आमतौर पे हम पाते हैं कि जब भी हमें अप्रेजल का लेटर मिलता है या फिर मेल आता है तो हम वो पढ़कर बहुत खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही हम दूसरों के साथ बातचीत करते हैं और तुलना करते हैं तब हम अपने आप को असंतुष्ट पाते हैं। So I stopped comparing myself with others altogether, because what my God gives, you take it, happy. इसीलिए तुलना करना बंद ही कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो जानते हैं कि जो भी मिला है वो परमेश्वर के प्रति परमेश्वर से है और इसीलिए वो धन्यवाद के लायक है। Uncle, sorry to interrupt. We can summarize after this slide. Okay. Yeah, thanks. All right. Next point is do not worry. Therefore, I tell you, you do not worry about your life. If you read that verse, you can read it at home later. It's in the Matthew's Gospel, chapter 6. और आगे का हिस्सा जो है वो चिंता के बारे में मत्ती का 6 के अंत में है, जो आप घर पे पढ़ सकते हैं। So it talks about worrying about many things which makes us very unhappy in our life. और ये बात करता है चिंता की जिसकी वजह से हमें अपने जीवन में असंतुष्टता पाते हैं। So if you see the verse there, it talks about your heavenly Father knows that you need them, but seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि हम क्या चाहते हैं, और सबसे पहले हम परमेश्वर की और उसकी राज्य और धर्म की खोज करें तो ये सारी चीजें भी हमें मिलेगी। So if you read that verse carefully, but seek first his kingdom and his righteousness, that means if we focus on application of the word of God in the place of work, where we live most of the time in our life, all these things will be given to you as well. That means if we focus on living for God, other things what you really worry about will be just added to our life free of cost. You don't have to worry about them. वचन 6 का 33 में लिखा है कि पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। तो इसलिए सबसे अहम हमारे लिए है कि परमेश्वर का वचन जानकर उसे अपने काम की जगह पे उसका इस्तेमाल करना, और जो सारी चीजें जिनके बारे में हम चिंता करते हैं वो अपने आप उसके बाद हमें मिलेगी। The last point I want to close with, how to achieve your KRA targets. Sorry, not this 1 minute. Yeah. How to achieve your KRA targets. I hope everybody knows what is KRA. और आखिरी हिस्सा जो हम देखेंगे कि हमारे KRA मतलब जो चीजों के लिए हमें उस काम के लिए रखा गया है वो कैसे हम उसे पाए। Key result area. That is what means every company expects you to get some results at the end of the year. और की रिजल्ट एरिया मतलब वो सारी चीजें जिससे हमें पता चलता है कि हमने काम कैसे किया। Simple formula is given in the Bible. और साधारण सरल रूप से पवित्र शास्त्र हमें इसे बताता है इसके बारे में। Ask, seek and knock. मांगो, ढूंढो और खटखटाओ। There is no full stop here. और वहां पे बात खत्म नहीं होती है। Ask and it will be given to you. Semicolon. मांगो तो दिया जाएगा। Seek and you will find. ढूंढो तो तुम पाओगे। Knock and the door will be open to you. खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। For everyone who asks receives, one who seeks finds, and to the one who knocks, the door will be opened.
क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटा है उसके लिए खोला जाएगा। So I'm talking about the KRA here, the result areas in the workplace. Asking is praying to God that He will help you to achieve. और मांगना मतलब परमेश्वर से प्रार्थना करना कि ताकि वो हमें हमारे टारगेट्स पूरे करने के लिए मदद करे। Seeking is planning how you can achieve that. ढूंढना मतलब हमें योजना बनाना कि कैसे हम वो सारी चीजें पा सकते हैं। And you think that you have to, like in my case, if I decide that I have to achieve this sales value, who are the customers, identify them and knock their door. और जो परिणाम हम चाहते हैं, जब हम योजना बनाते हैं कैसे उसे पूरी की सकती है, तो जो लोग या जो चीजें करना जरूरी है वो लोगों के पास जाकर खटखटाना या फिर उनसे मदद मांगना। And God opens the door for us. और फिर परमेश्वर जो है वो दरवाजा खोलता है हमारे लिए। So this is a simple formula I learned early in my life to apply, and God has never let me down. और ये सरल बात जो है वो भाई ने बहुत पहले अपने जीवन में सीखी और उसके बाद परमेश्वर ने कभी उन्हें नीचे नहीं दिखाया। So the simple thing is, do not stop by only asking. Do not stop only seeking, but close it with knocking the doors. तो इसीलिए मांग कर रुको ना, या फिर केवल ढूंढ कर रुको ना, परंतु खटखटाओ ताकि दरवाजा खोला जाए। So this can be applied in every area. और हर एक जीवन के हिस्से में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। Shall we close in prayer?